With prostrations at the divine feet of Bhagwan Swaminarayan and my Guru Hari, Param Pujya Pramukh Swami Maharaj and Pragat Guru Hari, Param Pujya Mahant Swami Maharaj, my heartiest Namaskar, good evening and Jai Swaminarayan to all the organizers and the delegates of this conference today. Jai Swaminarayan. First of all, I beg your pardon. We were quite late. The reason was the flight was supposed to take off from Mumbai at 4:30 p.m. It took off at 6:30 p.m. So 2 hours late takeoff from Mumbai. And from the airport to here, we had a rush, but we were diverted at the wrong place by a diversion on the main road. That took another 15 minutes. So I'm extremely sorry for being late. Please pardon me. And more than that, I'm supposed to talk on the topic work-life balance today. हमारे कार्य में और जीवन में किस प्रकार से हम बैलेंस करें, तो थोड़ी बैलेंसिंग एक्ट से मैंने शुरुआत की. We live in this 21st century. और जब वर्क लाइफ बैलेंस की बात आती है, मुझे बताया गया है कि हिंदी और इंग्लिश आप मिक्स करना, कि वर्क लाइफ बैलेंस की जब बात आती है, हमारा काम है, एक तरफ हमारा व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन है, and we are not just the work that we do, and we are just not the visiting card that we hold, and we are not just the car that we drive, and we are not just the house that we live in. लेकिन हम मनुष्य हैं, भावनाएं हमारे अंतर में कई प्रकार की है, हम उसे युक्त हैं. So we have a personal life, we have a social life, we have a family life. How to balance these two types of lives, a work life and a personal, family and social life. तो सबसे बड़ा जो कारण है जो हमारा वर्क लाइफ इम्बैलेंस करता है, that is over infatuation towards money. पैसे के प्रति बहुत प्रेम है. पैसा बहिर्प्राण है, बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, हम सभी ये कुछ मानते हैं, लेकिन फिर भी that is the principal reason which breaks, actually imbalances work and life. If money can buy you 100 things that can make you happy, it cannot buy another 100 things that actually makes you more happy. बहुत शांति से आप घर जाके एक दो लिस्ट बनाना. एक लिस्ट ये बनाना कि थिंग्स दैट मनी कैन बाय एंड मेक यू हैप्पी. कार है, हाउस है, ब्रांडेड क्लॉथ्स है, ब्रांडेड ज्वेलरी है, थिंग्स दैट मनी कैन बाय एंड यू बिकम हैप्पी विथ इट. एंड सेकेंड कॉलम, थिंग्स दैट मनी कैन नॉट बाय एंड स्टिल यू नीड इट, एंड यू नीड इट वेरी डायरली टू बिकम हैप्पी. लव है, ट्रस्ट है, रिलेशनशिप्स है, स्लीप है, हंगर है, डाइजेशन है. बहुत शांति से आप सोच के जीवन में अगर तय करने का प्रयत्न करेंगे तो एक चौक्कस नतीजे पे आप ये आएंगे कि जीवन में थिंग्स दैट मनी कैन बाय आर लेसर इंपॉर्टेंट देन थिंग्स दैट मनी कैन नॉट बाय, एंड दैट यू नीड मोर. If money can buy you a good house, it does not have the power to convert that house into a home. Yes or no? If money can buy you the best of beds and luxurious ones, it still does not have the power to give you a good sleep on that. Michael Jackson $94,000 के बेड पे सोते थे, लेकिन 10 गोलियां नींद की लेते थे, तभी आधा पौना घंटा 1 घंटा नींद आती थी. Money can buy you good food. It does not guarantee you good digestion. Yes or no? Money can buy you a good health care plan, but it does not have the capacity to give you a good health. Yes or no? Money can buy you branded clothes and jewelry. It does not have the capacity to bring to you beauty and handsomeness. So बहुत शांति से आप सोचेंगे तो ये दौड़ जो है, मोर मनी मोर मनी मोर मनी, डे एंड नाइट, सुबह उठे तब से लेके रात को सोने गए तब तक पैसे का ही विचार
this is the biggest hurdle in a work-life balance. फिर से दोहराना चाहूंगा, जरूरी है, चाहिए, बहीन प्राण है, लेकिन फिर भी एक डिमार्केशन तो रखना पड़ेगा, एक सेटिस्फैक्शन बार तो रखना पड़ेगा, एक क्लियर विजन इसके बारे में रखना तो जरूर पड़ेगा. वरना क्या होता है, ज्यादातर ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं, when I talk to corporates, I tell them that half of your life you spend earning money at the cost of your health, and the second half of your life you spend that earned money to get back the health that you lost while earning it. यही परिस्थिति एग्जीक्यूटिव्स की होती है, प्रोफेशनल्स की होती है. काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन अ सेटिस्फैक्शन बार समवेयर, अ फिजिकल टाइम बार समवेयर यू हैव टू पुट इन लाइफ, अदरवाइज यू कैन बी अ बिग लूजर समडे. लेकिन हमारी मटीरियलिस्टिक डेफिनेशन इतनी बढ़ गई है. द बिगेस्ट डिजीज ऑफ द 21st सेंचुरी मैन, ये बहुत सोच के, विचार के, देख के मैंने ये डेफिनेशन बनाई है. The biggest disease of the 21st century man is that he wants to identify himself in the society through his materialistic possessions, through his worldly achievements. मैं ये ना नहीं कहता हूं कि आप एक बड़ी कंपनी न बनाएं, आप बड़े अच्छे डॉक्टर न बने, उसके लिए पुरुषार्थ न करें. पुरुषार्थ हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य सभी आगे इट्स डिग्निटी. लेकिन एक बार तो कोई जगह पे रखना पड़ेगा. एवरी वीक अ टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव सफर्स अ मैसिव कार्डियक अरेस्ट एंड ही डाइज बिकॉज ऑफ मोर वर्क एंड लेस स्लीप. हाँ या ना? जापान में इसको करोशी बोलते हैं, जापानीज भाषा में इसको करोशी बोलते हैं. मतलब डेथ ड्यू टू ओवरवर्क, डेथ ड्यू टू ओवरवर्क, दैट इज करोशी. तो मटीरियलिस्टिक डेफिनेशन हमारी बढ़ गई है, इसलिए दौड़ में आ गए, कंपटीशन ज्यादा बढ़ गई, रैट रेस में आ गए. समटाइम्स आई टेल दैट इवन इफ यू विन द रेस यू आर स्टिल अ रैट. आप रैट रेस में आ गए, इवन इफ यू विन इट यू आर स्टिल अ रैट. लेकिन हमारे मन में ये डेफिनेशन चलती है नॉर्मली कि व्हाट इज ऑल प्लेजर्स एंड ऑल हेवन फॉर मी अपॉन दिस अर्थ. ये 5 चीजें अगर मुझे एक साथ मिल जाए तो दैट इज हेवन फॉर मी अपॉन दिस अर्थ. अमेरिकन सैलरी, इफ यू आर अर्निंग इन यूएसए, अमेरिकन सैलरी, अ ब्रिटिश हाउस, फाइन नाइस कोजी हाउसेस, जर्मन कार, ऑडी, मार्क, चाइनीज फूड. कितने हुए? 4. अमेरिकन सैलरी, अ ब्रिटिश हाउस, जर्मन कार, चाइनीज फूड एंड इंडियन वाइफ. ये 5 का कॉम्बिनेशन अगर मुझे मिल गया तो मेरे लिए पृथ्वी पे स्वर्ग है. ये हमारी डेफिनेशन आजकल बन गई है. एंड व्हाट इज हैड अपॉन दिस अर्थ? रिवर्स ऑफ दिस, इंडियन सैलरी. Chinese house, sometimes people live in boat houses there. They say German food, they say American car. कितने हुए? 4. Indian salary, Chinese house, a German food, American car, and a British wife. Because in Britain 3 W's they change anytime: weather, wine, and wife. And probably that is the reason that your search engine starts with www. I'm just joking, take it lightly. What I mean to say, बहुत मटीरियलिस्टिक डेफिनेशन हो गई है और जीवन भी ऐसा हो गया है कि पूरे दिन इसी सोच में दिमाग लगा रहता है, मेंटल एनर्जी इसी पे खर्च हो जाती. तो एज ए ह्यूमन बीइंग you have a 70 or 80 year game. हाँ या ना? This human life is 70-80 years. एक अच्छी गिनती आपको कराऊं मैं.
hours in a day you sleep? Yes or no? कोई बोलेंगे नहीं मैं तो 6 घंटे सोता हूं, 6.5 घंटे सोता हूं, तब छोटे थे तब 10 घंटा सोते थे, बड़े होंगे तब 10-12 घंटे सोएंगे. Average will come down to 8 hours a day. Yes or no? So of the 24 hours that you have in a day, 8 hours you sleep. So 1/3 of the day you sleep, directly proportional, 1/3 of the life you will sleep. Yes or no? So if you live for 70 years upon this earth, 23 years of your life are going to be in sleep. You don't know whether you exist or not. मैं डॉक्टर हूं या नहीं, वो तो छोड़ दो, डायबिटीज है कि नहीं वो भी भूल जाओगे. आप 70 साल इस पृथ्वी पे जिए, उसमें से 23 साल 23 years of your life are going to be in bed sleeping. You don't know whether you exist or not. बहुत सोच समझ के ये जीवन जीना है, वर्क लाइफ बैलेंस रखना है. सिर्फ दौड़ नहीं करना है सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक. And nobody can drink the whole sea of their profession. जितने केसेस हैं पूरे बड़ौदा सिटी में, डॉक्टर बुच आपके टेबल पे आ गए तो मर जाऊंगा, सुनते ही मर गए आधे तो. See, nobody can drink the whole sea of his profession. Am I right or wrong? तो put a physical time bar somewhere कि शाम को 6 बजे, शाम को 7 बजे खड़ा हो जाऊंगा. Put a satisfaction bar somewhere. तो वर्क लाइफ बैलेंस वहां से शुरू होता है. ये समझदारी से वर्क लाइफ बैलेंस शुरू होता है. तो ये वर्क लाइफ बैलेंस में ये फाउंडेशन रखते हुए थोड़ी समझदारी, थोड़े प्रैक्टिकल्स जरूरी है. श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. This is the most popular Sanskrit श्लोक in the whole of the world. क्या कहा? कर्म करना तेरा अधिकार है, तेरा फर्ज भी है, लेकिन परिणाम मैं तय करूंगा. You do your karma to the best of the resources available, put all your resources into it for the final outcome of the result, but results, Lord Krishna says, I decide. मैं आप सभी को 2 प्रश्न पूछूंगा, आप सभी दोनों प्रश्नों में हाँ कहेंगे. पहला प्रश्न, ये समझाने के लिए आपके जीवन में से मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा. पहला प्रश्न, आप सभी को अनुभव होगा कि कई बार यू प्लान्ड वेल, यू एग्जीक्यूटेड वेल, स्टिल यू डिड नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. यस और नो? सेकंड क्वेश्चन, कई बार कुछ समय कम था, कुछ रिसोर्सेस कम थे, तो आपको प्लानिंग में ज्यादा समय नहीं मिला, कुछ एक्सपर्टाइज नहीं मिली, हेल्प नहीं मिली, तो प्लानिंग कुछ कमजोर हुआ. एग्जीक्यूशन में पूरे रिसोर्सेस नहीं डाल पाए तो एग्जीक्यूशन भी थोड़ा कम हुआ. फिर भी परिणाम बियॉन्ड योर रिजल्ट्स. यस और नो? तो ये कभी इस पे सोचा? इस बार मेरा प्लानिंग एग्जीक्यूशन कम था, फिर भी परिणाम अच्छा मिला, और इस बार प्लानिंग और एग्जीक्यूशन. तो ये सोचना, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. दैट इज, in whichever profession I am, I'll put my best resources available for the best outcome of the result. But at the end of the day, I will accept the result wholeheartedly, His wish. तो बैलेंस रहेगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, टेंशन नहीं रहेगा, डिप्रेशन में नहीं आओगे. स्ट्रेस और डिप्रेशन इसलिए आता है, I decided it, I planned it, I executed it, I must get that result. Yes or no? ये गोल तय करने की एक डिटर्मिनेशन की भावना से ये बात सही है. प्रयत्न पूरा कर लेना, गोल तय करके कि मैंने प्लान किया, ये आना ही चाहिए, ये भावना से ही काम शुरू करना चाहिए. लेकिन काम पूरा हो, जो भी रिजल्ट प्राप्त हो, उस वक्त इतनी अंतर्दृष्टि कर रही है कि मैंने अपने सभी रिसोर्सेज लगा दिए थे. फाइन, नाउ द व्हाटएवर द फाइनल आउटकम, आई एक्सेप्ट इट. सिंपल. तो कभी टेंशन नहीं आएगा, कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे. हम रिजल्ट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, इसलिए स्ट्रेस और टेंशन में आते हैं. ये क्यों हुआ, नहीं होना था, क्यों हुआ, यहां से टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस चालू होता है. यस और नो? नहीं होना था, हुआ, अब क्या करना है, बोल.
Done is done. It cannot be undone even if you go to London. It will be undone even if you go to London. 2-3 जो लंदन चले गए उसको वापस लाना है. It can be undone even if you go to London, but I'm talking about normal circumstances. तो ये समझदारी बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसे थियोरेटिकल बात करता हूं आपको. I come from one of the world's largest organization. We are among the top 10 NGOs of the world, the BAPS Swaminarayan Sanstha. We have got a permanent seat in the United Nations as an NGO. आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा. Just raise your hands. Yes or no? Everybody. One in Gandhinagar, another in Delhi. How many have been to Delhi? सभी ने देखा है. ऐसे छोटे मोटे हमारे 1200 कैंपसेस हैं. कोई डॉक्टर यहां बैठे हो, उनके पूरे भारत में 20 क्लिनिक हो. Unimaginable. All this was created by one man organization, प्रमुख स्वामी महाराज. आप में से कहीं ने उनके व्यक्तिगत दर्शन भी किए होंगे. He was a one man organization. एक व्यक्ति संस्था थे. Imagine 1200 campuses all over the world. Small and big like अक्षरधाम. गांधीनगर का तो 23 एकड़ पे है, दिल्ली 110 एकड़ पे है. और अभी रॉबिन्सविले में अमेरिका में बन रहा है on 265 acres of land. At this point of time when I'm talking to you today, more than 4,000 artisans are working on our 26 sites in Rajasthan. And we intend to inaugurate it in August 2022. हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज इनॉग्रेट करेंगे. तभी पूरी पृथ्वी पे बैंग बजेगा हिंदुइज्म, इंडियन कल्चर का. इतनी बड़ी संस्था की व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं. तो सिर्फ आपको कोई उपदेश देना है ऐसी बात नहीं है. वी नो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, वी नो व्हाट इज मैनेजमेंट, वी नो व्हाट इज एचआर. दिन में 8 घंटा उसी पे काम करते हैं. जो भी मैं कर रहा हूं आपके सामने खड़े खड़े, वो तो मेरी एक सेकेंडरी जॉब है, वो तो पार्ट टाइम जॉब है, माय हॉबी जॉब. कहने की बात यह है कि प्रमुख स्वामी महाराज को जीवन में कभी डिप्रेशन, टेंशन नहीं आया. ये 1200 कैंपस के अलावा वी रन 110 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस. आप नंबर 48 नेशनल हाईवे पे चले तो आबू से लेकर मुंबई तक एवरी 50 किलोमीटर यू विल फाइंड अवर इंस्टीट्यूट. ऐसे अक्षरधाम जरा बड़ा कैंपस अभी अब सिडनी में बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, जोहान्सबर्ग में बन रहा है, साउथ अफ्रीका में. और अभी आपने 6 महीने पहले समाचार सुने होंगे कि अबू धाबी के राजा हिज रॉयल हाइनेस शेख जयद ने हमें बीएपीएस संस्था को 27 एकड़ जमीन दुबई अबू धाबी एक्सप्रेस हाईवे पे डोनेशन में गिफ्ट में दी. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लैनेट. प्रमुख स्वामी महाराज ने इतना कार्य पृथ्वी पे किया. हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा दी. उनमें से 750 से भी ज्यादा संत डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं. इनमें से 150 से भी ज्यादा संत दे आर बोर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन्स. उनमें से 50 से भी ज्यादा संत दे आर स्टडीड इन इंस्टीट्यूट्स लाइक स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल, किलोन. हमारे कहीं संत 25-28 साल की उम्र में 1.5 लाख 2 लाख $2 की सैलरी छोड़ के आए हैं. मोटोरोला कंपनी का $1 लाख का अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ के यहां साधु हैं. ऐसे भी संत हैं. ये तो मैंने आपको इसलिए कहा कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं जमा होगा, नहीं ठीक चला होगा, इसलिए यहां गए. Normally when people look saffron-clad people, they probably feel कि ये बेचारा, actually वो तत्कालीन बेचारा बन जाता है. ये बेचारा, उसको कुछ जमा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं चला होगा, इसलिए उसने बेचारे ने भव्य कपड़े पहन ली, इधर आ गया. BAPS is a different organization. We know what we are doing and we know why we are here. तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में ये वर्क लाइफ बैलेंस था कि इतनी बड़ी संस्था चलाने के बाद भी उनको जीवन में कभी स्ट्रेस, टेंशन नहीं है. वो 30 साल हम उनके साथ रहे, देखा है. और आप जो काम करते हो और हम जो काम करते हैं उसमें बहुत तफावत है. आप जो काम करते हो उसमें पे एंड स्माइल रिलेशनशिप है. आपका वर्क मॉडल अलग है. जो कॉर्पोरेट वर्क मॉडल है, पे एंड स्माइल, मतलब आपकी तनख्वाह आपके कर्मचारी को अच्छी लगती है, इसलिए उसके चेहरे पे स्माइल है. और आपके कर्मचारी का काम आपको अच्छा लगता है, इसलिए आपके चेहरे पे स्माइल है. सिंपल, इट्स कॉल्ड पे एंड स्माइल. हम जो एनजीओ में फुल टाइम काम करते हैं वहां सर्व एंड स्माइल रिलेशनशिप है. सेवा करना और चेहरे पे आनंद रखना वो डिफिकल्ट है.
It's easy to run 10 corporates, difficult to run an NGO of this class. यहां सबके मन का ध्यान रखते हुए काम करना है, तो वहां तो ज्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस आने की शक्यता है। इतना सारा काम करते हुए भी प्रमुख स्वामी महाराज को क्यों कभी डिप्रेशन स्ट्रेस नहीं आया? तो ये एक बात सीखनी है वर्क लाइफ बैलेंस में। In the late 80s, we wanted to come up with a huge Akshardham-like complex. That is a huge temple in London. हैरो में एक सबब में हमने जमीन खरीदी। पड़ोस वालों ने, नेबरहुड ने हमारे सामने केस दर्ज किया कोर्ट में, और केस ये था कि ये लोग 12 बजे तक कुछ घंट बजाएंगे, ड्रम बजाएंगे, हमारी पीस और प्राइवेसी चली जाएगी। हमने बोला भाई ये नहीं करते, रात को 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है, आप भारत में आइए, अमेरिका में आइए, हमारे मंदिर देखें। नहीं, दे विल डिस्टर्ब आवर पीस एंड प्राइवेसी। सिग्नेचर कैंपेन चला नेबरहुड में, ये लोग लोकल्स थे, ज्यादा सिग्नेचर मिली, हम लोग इमिग्रेंट्स थे, कम मिली, और कोर्ट ने रूलिंग दे दिया, फुल एंड फाइनल जजमेंट, BAPS कैन नॉट बिल्ड अ टेंपल हियर इन हैरो। प्रमुख स्वामी महाराज बड़ौदा में थे, लंदन से हमारे ट्रस्टी ने फोन किया, नाउ लिसन केयरफुली, फोन किया और कहा कि स्वामी जी, वी हैव लॉस्ट द केस एंड वी विल नॉट बी एबल टू बिल्ड द टेंपल देयर। इट वाज अ सेटबैक, इट वाज अ शॉक कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो, आपने जमीन खरीदी और आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आपको परमिशन न मिले। See how we handle this shock. This is where we learn from such great personalities for a proper work-life balance. How to handle shocks, setbacks, failures in life. पहला विचार, पहला शब्द, पहला वाक्य प्रमुख स्वामी महाराज बोले इन इस ट्रेडिशनल गुजराती, जेवी भगवान ने इच्छा, जैसी भगवान की इच्छा। See, he stabilized himself by that. सेकेंड सेंटेंस स्पोक, हमने तो अपना प्रयत्न कर लिया था, अब जो भी परिणाम आया वो हमें मान्य है। बफा, तीसरा वाक्य बोले, दैट वाज डिटर्मिनेशन, कि हमने तय किया है कि वहां मंदिर बड़ा अच्छा भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करना है, तो जरूर करना है, दूसरी जमीन ढूंढना चालू कर दो। दैट इज डिटर्मिनेशन। दिस इज कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस फ्रॉम द वर्क पॉइंट ऑफ व्यू। सेटबैक मिला, फेलियर मिला, काम आगे नहीं बढ़ा, फर्स्ट एक्सेप्ट इट, हां हो सकता है, नहीं मुझे तो होना ही नहीं चाहिए, एवरीथिंग शुड बी गुडी गुडी इन माय लाइफ। तो ये आपको पैकेज डील है आपकी। आप जैसे अपने कर्मचारी को पैकेज डील देते हो, तो ये भगवान ने भी एक पैकेज डील आपको दे रखी है, 70 साल का जीवन। He did not promise you, he is not the signatory that everything goody goody will happen in your life. हाँ या ना? It can happen. To handle such failures and setbacks, first accept it can happen with me. Acceptance will work as a big buffer. दूसरी एक बात है, आप सभी डॉक्टर्स यहाँ कितने बैठे होंगे, just raise your hands. And how many of you perform surgeries? Quite few of you करते हो। तो आप सभी को भी अनुभव होगा कि कई बार कॉम्प्लेक्स सर्जरी भी आसानी से जल्दी हल हो जाती है, और यह भी अनुभव होगा कि कभी बार कोई सिंपल सर्जरी हो लेकिन आउटकम नेगेटिव आता है। यस और नो? डॉक्टर नेविल हैकर को यही प्रश्न था, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, हमारे 1992 में इनॉग्रेशन था अक्षरधाम गांधीनगर का, तभी 34 दिन का बड़ा उत्सव था, फिजिशियंस कॉन्फ्रेंस यहाँ अहमदाबाद में थी, हम निमंत्रण देने सभी फिजिशियंस को आए कि आप पधारें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सब आए थे अक्षरधाम देखने के लिए। वी गेव देम अ गाइडेड टूर। डॉक्टर नेविल हैकर बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को यही प्रश्न पूछा कि मेरे मन में तनाव ये रहता है, स्ट्रेस ये रहता है कि कई बार कॉम्प्लेक्स सर्जरीज ठीक तरह से कर पाता हूं, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, sometimes even after so much of experience I fail in simple surgeries। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने यह कहा, प्रमुख स्वामी महाराज ने यह कहा कि भगवान ने आयुष्य तय करके रखा है, अगर उसकी आयुष्य पूरी हो गई हो तो सिंपल ऑपरेशन भी आपका फेल जाएगा, क्योंकि आयुष्य पूरी हो गई है, और अगर उसके नसीब में और आयुष्य है तो कॉम्प्लेक्स सर्जरी भी आपके हाथों से भगवान ठीक करवा देंगे। बिलीव दैट ही इज द डूअर, देन यू विल बी एट ईज विथ योर इनर सेल्फ। दैट इज अ वर्क लाइफ बैलेंस फ्रॉम द वर्क पॉइंट ऑफ व्यू।
तो भगवान को सर्व करता हरता समझना। देखो, मैं पुरुष प्रयत्न की ना नहीं कहता हूं। एक्सट्रीम हार्डवर्क करना वो ह्यूमन डिग्निटी है। प्लान्ड हार्डवर्क करना इट इज ह्यूमन डिग्निटी। बट ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कि अगर रिजल्ट कम मिला तो मैं भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार लूंगा, मैं अपने आप को स्ट्रेस में, टेंशन में नहीं जाने दूंगा। ये भी डिसाइड कर लेना काम शुरू करते पहले ही। दैट इज कॉल्ड अ वर्क लाइफ बैलेंस फ्रॉम द वर्क पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत जरूरी है। टेंशन, स्ट्रेस, ये समझदारी ठीक आ गई। यू डोंट नीड अ स्लीपिंग पिल एट नाइट। जो भगवान को करता हरता समझते हो तो this is a very clear thought, this is a very deep thought, and everybody in the 21st century needs to imbibe this thought in their hearts and minds to remain stable, to remain peaceful. वरना 70-80 साल का जीवन है, टेंशन में, स्ट्रेस में अगर निकाला, अनहैप्पीनेस, वरी में निकाला, तो जीवन कहां आपने जिया? Tell yourself every day in the morning, whatever happens today, I will try my best to improve the situation to my resources, but I will not get disturbed, I will not get stressed, I will never go into tension. ये तो एक बार कह दो 10-12 वक्त सुबह में उठ के अपने आप को, then start your day. तीसरी बात है वर्क लाइफ बैलेंस में एथिकल प्रैक्टिस। नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ा, इनिशियल प्रगति अच्छी लगेगी, पैसे भी मिल जाएंगे, शायद थोड़ी कीर्ति भी हाथ में आ जाएगी, लेकिन यू कैन बी अ बिग लूजर समडे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, पृथ्वी सब प्रकार का ये वेट्स सहन कर सकती है, लेकिन झूठ बोलने वाले का नहीं। तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस मत करना। आप टाई अप कर दो, रिंग में चढ़ा दो, पेशेंट को चक्कर पे चढ़ा दो, 2 दवाई की जगह 3, 5, 10 दवाई लिख दो। कभी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में मत जाना। इनिशियल मनी, इनिशियल फेम अच्छी लगेगी, लेकिन यू कैन बिकम जीरो फ्रॉम हीरो विद इन सेकेंड्स। एम आई राइट और रॉन्ग? चलो, आपके प्रोफेशन की तो अलग बात है, और कोई प्रोफेशन की बात कर लो ताकि आपको ये ना लगे कि हमारे प्रोफेशन में बात कर दी। अनएथिकल प्रैक्टिसेस में, इवन इफ द नेम ऑफ योर कंपनी इज सत्यम एंड यू गो फॉर असत्य प्रैक्टिसेस, क्लिक हुआ? ये थोड़े यंग जनरेशन बैठे उनको कम होगा, ये उनके पहले की बात है, ये वालों को पता चलेगा। इवन इफ यू आर द किंग ऑफ द स्काईज, यू हैव टू लीव इंडिया विदाउट इंडियन पासपोर्ट ऑन योर डिप्लोमेट्स पासपोर्ट, राज्यसभा पासपोर्ट। इवन इफ यू हैव बिल्ट thousands of homes for families and become Sahara for thousands of families, you can still lie be a Sahara in Tihar for 4 years. Even if you are a very pace bowler for the Indian cricket team, a young upcoming pace bowler, but if you indulge yourself in some sport fixing, you can invite a live band. कहीं की स्टोरीज है, ये लिस्ट बहुत लंबा है। इन शॉर्ट, चलो ये भी और एक प्रोफेशन की बात कर दो ताकि आपको कुछ गलत ना लगे। इन शॉर्ट, इफ यू बिकम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, you started your career as a junior engineer, then you become a senior engineer, then you become an executive engineer, board member बने, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन बने, 35 साल की करियर, and a fine Sunday morning with a cup of coffee and Sunday Times in your hand, you can't put your collars up and tell to the electric plug, देखो ये चेयरमैन की उंगली में अंदर डालता हूं, जरा ध्यान रख लेना। कर सकते हो? कैन यू टेल द इलेक्ट्रिक प्लग, ये तो चेयरमैन की फिंगर है, ओके, मैं उंगली अंदर डालता हूं, ओके, टेक केयर। क्या कहेगी इलेक्ट्रिसिटी? कहेगी नहीं, क्या करेगी? चिपका देगी और मर जाओगे। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी डजंट नो योर पोस्ट, पोजिशन एंड पावर। इन द सेम वे ethics, norms and disciplines doesn't know your post, position and power. Whoever you are, wherever you are, whatever you are, whatever powerful positions you have been, you can still go in Tihar at the age of 73. बहुत ध्यान रखना।
अनएथिकल प्रैक्टिसेस से आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते. If you want to walk long and a wonderful dignified career of your life, ethical practices is must. तो ये कर्मण्यवादी का रास्ते श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा. ये 3 समझदारी श्लोक में है. Absolutely ethical practices. At the end of your career, anywhere in the middle, you should be able to hold your head high in the midst of any crowd and with dignity, with pride. I've not done anything wrong. And no pillow is as soft as a clear conscience. रात को जब आप सोने जाते हो बेडरूम में, softest pillow to lay your head on and get a beautiful sleep is a clear conscience. कि आज मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं एथिकली वेडेड रहा हूं मेरी प्रैक्टिस से. ये conviction is your softest and the best pillow to lay your head at night and get a good sleep. तो ये वर्क लाइफ बैलेंस में जरूरी है. एक और विचार आपको आपके सामने पेश करना चाहूंगा वर्क लाइफ बैलेंस में वर्क की दृष्टि से. अभी रतन टाटा एक कॉन्फ्रेंस में थे, कॉन्वोकेशन डे था मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का. कॉन्वोकेशन डे में उन्होंने कहा, आउट ऑफ हिज लाइक मोर देन 50 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ही सेड, बहुत अच्छी बात उन्होंने की, डोंट काउंट योर सक्सेस ऑन द अमाउंट ऑफ लग्जरीज दैट यू हैव गैदर्ड. डोंट काउंट योर सक्सेस ऑन द फैटनेस ऑफ द बैंक अकाउंट दैट यू हैव बिल्ड. Don't count your success on more social relationships that you have developed and flourished. But count your successes on the number of lives that you have enriched in the process, in the journey of your profession. कितनी लाइफ आपने एनरिच की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर प्रोफेशन. आपने 25 साल की उम्र में अच्छा प्रोफेशन चालू किया, 70 साल की उम्र तक आपने किया, वो 35 साल how did you travel the journey? How many lives did you improve and enrich? That counts is your success. बहुत अच्छी बात उन्होंने की. तो ये भी सोचना है कि in the journey, am I improving and enriching people's lives? Socially, morally, ethically, monetarily. तो ये भी एक आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये भी आपका एक एम होना ही चाहिए. तो दिस ऑल फ्रॉम द वर्क साइड. और वर्क में मैं एक अच्छी फॉर्मूला सिखाता हूं. आई हैव रेड मोर देन अबाउट 500 बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज. आई हैव पर्सनली सेट विथ more than 25,000 families, visiting 25,000 homes in 30 countries of the world. उनके साथ बैठा हूं, उनके प्रश्न जाने सोचे हैं, कुछ आंकड़े चर्चाएं की हैं. And this could be my more than 15,000th talk in a conference in the last 25 years. मतलब n number of professionals को मिला हूं. कल सुबह में अभी मुंबई से मैं आया, अभी ये फंक्शन के बाद आई गो टू राजकोट स्ट्रेट अवे बिकॉज टुमारो मॉर्निंग आई एम टॉकिंग एट अ जुवेनाइल डायबिटीज कॉन्फ्रेंस इन राजकोट. जो टाइप 1 होते हैं, छोटे बच्चे से लेकर सभी कुछ होते हैं, उनके पेनक्रियाज ही बंद हो जाते हैं और पेनक्रियाज डोंट प्रोड्यूस इंसुलिन. तो टाइप 1 वालों की है वहां पे. एंड टुमारो इवनिंग आई गो टू मोरबी, आई टॉक टू 7,000 यूथ फॉर मोरबी यूथ फेस्टिवल. तो एन नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स को मिला हूं, वो एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. वर्क लाइफ बैलेंस की दृष्टि से एक बात बहुत सही है कि मैंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया, एंड दैट फॉर्मूला इज 8+8+8. आपके पास 24 घंटे हैं 8+8+8 की सिस्टम में आप चल रहा है. 8 hours honest, ethical, hard work in whichever profession you are. Second 8 hours of good sleep and rest. पूरी पृथ्वी की पूरी जिम्मेदारी आपको भगवान ने नहीं दे रखी है. टेक अ गुड स्लीप. ओके, टेक अ गुड स्लीप. आपको सिर्फ CAB क्या था, उसमें से CA क्या हुआ, अब NRC क्या है, NPR है, वो इंफॉर्मेशन अच्छी रखना एज एन एक्टिव सिटीजन. लेकिन उसके बारे में
जो करते हैं वो करेंगे। रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू योर प्रोफेशन। और ऐसे कुछ सोशल इश्यूज और नेशनल इश्यूज में आप पॉजिटिवली अंदर आ सकते हैं, लेकिन 8 घंटा प्रेम से सोना, आराम करना, आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, तीनों प्रकार की हेल्थ अच्छी रहेगी। वैसे भी आप डॉक्टर सभी को एडवाइस तो देते हैं सोना ठीक से, तो वही एडवाइस आप लोगों के लिए। पड़ोस में किसी ने प्राइवेट हॉस्पिटल बना ली जो आपके साथ काम करता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आप जल्दी मत करना, होगी, आपकी भी हो जाएगी, 2 साल के बाद होगी, टेंशन मत लेना। तो 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप एंड रेस्ट, वो क्यों नहीं होता है? आप रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक क्या करते हो? मोबाइल, ये गैजेट पे रहते हो। These gadgets are made to serve you. The reverse has happened. You have become the servants of these gadgets. रात को 12 बजे जब सोने जाता है तभी भी एक बार डेटा चालू करके व्हाट्सएप चालू करता है, कुछ है, कुछ है, कुछ नहीं है, तू सो जा। You are not a celebrity, okay? तेरे इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन फॉलोवर्स नहीं है कि रात को 12 बजे तू देख के खुश होकर सोएगा। Restrict yourself. ये सोच के आप रात को 12 बजे तक मोबाइल चालू रखते हो या व्हाट्सएप चालू रखते हो या सोशल मीडिया चालू रखते हो, कोई शायद मुझे 2G 3G राफेल ये CA के बारे में बहुत पता है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, तो शायद नरेंद्र जी को पता चले कि ये अहमदाबाद में एक सिटीजन है, बहुत एक्टिव है, उसको ये बारे में बहुत कुछ पता है, तो शायद JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए और रात को 12 बजे PMO में से फोन आए मेरे पे कि भाई साहब आप कल सुबह जल्दी दिल्ली आ जाना, और वो फोन में ना उठा पाऊं तो देश की बढ़िया सेवा हो जाएगी। ये आप मानते हो? तेरे जैसे उनके पास 130 करोड़ है, तू सो जा, और जिनको बुलाना है वो लोग बुला लेते हैं, वे बुलाते हैं, CBI के द्वारा बुलाते हैं, ED के द्वारा बुलाते, जिनको बुलाना बुला लेते हैं। तू शांति से सो जा। 8 hours of good sleep and rest. Third 8 hours are very important for a proper work-life balance. If you can live it well, you have won your life. If you can't live it well, you probably stand a chance to lose your life. Third 8 hours में मैं अपने सेमिनार में ये सिखाता हूं, 3F, 3H and 3S. 3F is family, friends and faith. 3H is health, hygiene, hobby. और 3S is soul, service and smile. ये 9 डिपार्टमेंट में आपके तीसरे 8 घंटे बीतने चाहिए। रिपीट विथ मी, फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ। ठीक तरह से आवाज निकलो, मैं जानता हूं आपका डिनर बाकी है, मेरा भी बाकी है। फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी, सोल, सर्विस, स्माइल। आप और कुछ टेक अवे साथ में न ले जाए तो ये लेके जाना, 8+8+8 सिस्टम, ये वर्क लाइफ बैलेंस है। आपको जान के शायद ताज्जुब होगा, प्रमुख स्वामी महाराज, he passed away just 3 years back at the age of 95. इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी व्यवस्था, फिर भी 40 साल तक सुबह 7:30 बजे वे प्रातः भ्रमण में, मॉर्निंग वॉक में आ गए। सॉरी, 6:40 to 7:10 used to do his morning walk for 40 years. 6:39 भी नहीं हुई, 6:41 भी नहीं हुई। इंडिया में हो, अमेरिका में हो, न्यूजीलैंड में हो, महापुरुषों के जीवन में से यह सीखना है। रविवार से पत्थरी में बैठो, रविवार से नहीं। रविवार से पण तू तो एनो एक चुने। वर्क लाइफ बैलेंस में ये है, आप अगर अनुकूल हो, कल सुबह का भी एक सेशन है ना आपका, एक YouTube में से 30 सेकंड की एक वीडियो है,
वो आप डाउनलोड कर लेना और सभी को दिखाना। और बहुत अच्छी वीडियो है 30 सेकंड की, जो कोको कोला के वर्ल्ड सीईओ थे ब्रायन डाइसन, वे कॉन्वोकेशन डे में गए थे, मैनेजमेंट स्टूडेंट सब बैठे थे, एंड 40 years इन कॉर्पोरेट एंड रिटायर्ड एज वर्ल्ड सीईओ ऑफ कोको कोला। 30 सेकंड का प्रवचन किया, ब्यूटीफुल, extraordinary. So far I have rated it as the best that I have heard. वो मैं 30 सेकंड में तो आपको नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके कहूंगा ताकि अच्छी तरह से उनका जो विचार है वो आपके मन में, दिमाग में बैठ जाए। बहुत अच्छी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि इन लाइफ एक्चुअली आर जगलिंग विद 5 balls। जोकर को देखा होगा सर्कस में, ही इज जगलिंग विद मोर देन 2, 3, 5 balls। फर्स्ट बॉल इज द बॉल ऑफ वर्क, second ball is the ball of family, third ball is ball of friends, fourth ball is the ball of health, and fifth ball is the ball of soul। ये 5 बॉल से आप जगलिंग कर रहे हैं, मतलब आपका कॉन्शियस जो समय है वो इस 5 बातों में व्यतीत होता है। ये फर्स्ट सेंटेंस था। सेकंड सेंटेंस कि आफ्टर जगलिंग इट फॉर मेनी डिकेड्स यू विल कम टू नो दैट द फर्स्ट बॉल दैट इज द बॉल ऑफ वर्क इज मेड अप ऑफ रबर एंड द रेस्ट 4 balls आर मेड अप ऑफ ग्लास। Third sentence now. First ball that is made up of rubber, if you lose it on the ground, it falls on the ground. Because it is made up of rubber, it will bounce back. So work can come again. Work opportunity can come again. जो रिचर्ड ब्रैंसन है, वर्जिन अटलांटिक के सीईओ, कई बार कहते हैं, उनकी बुक में भी लिखा है कि वर्क अपॉर्चुनिटी इज लाइक बस स्टैंड, बस कम्स एवरी 3 minutes, लाल दरवाजा। So the first ball is made up of glass, rubber, it can bounce back, it is the ball of work। और 4 जो बॉल है, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ और स्पिरिट, it is made up of glass। If you lose it, it falls on the ground, it will break, if not break, crack, and if not crack, it will de-shape, but it will not be the same again। फाइनल वाक्य बोले, वो सुन के हृदय में उतार के यहां से जाना। बहुत अच्छा वाक्य, आई एम कोटिंग हिम, नॉट जस्ट वर्ड टू वर्ड बट लेटर टू लेटर। उन्होंने कहा, सो गेट टू वर्क ऑन टाइम, वर्क वेरी इफेक्टिवली ड्यूरिंग योर वर्किंग आवर्स एंड गेट बैक टू योर फैमिली ऑन टाइम। तो ये 1+1+1 सिस्टम की हुई, तो आप स्ट्रेस टेंशन से बच जाओगे। ना वी कम ऑन द फैमिली पार्ट, लाइफ पार्ट, दैट इज, ये फॉर्मूला फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसलिए फ्रांस गवर्नमेंट ने बिल पास किया है, द राइट टू रिजेक्ट वर्क आफ्टर 6 PM। Even if your boss puts you an email and if it is 6:01 PM, if you don't answer that mail, you're fine। Constitutional right to every citizen in France, the right to reject work after 6 PM। उन्होंने सोचा कि फैमिली टाइम जरूरी है। अभी 5 दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की 4 day वीक की, 4 days वीक, एंड द 4 working days only 6 hours of work। ये बहुत जरूरी है फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए। न्यूजीलैंड में अभी ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, एनजीओज में, कॉर्पोरेट्स में, गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, सभी जगह पे, इंस्टीट्यूट्स में, कि 4 day वीक चलेगा कि नहीं चलेगा। वे लोग भी अभी पॉजिटिव है और शायद बिल इंट्रोड्यूस होगा न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में और 4 day वीक वहां भी आएगा। And you work till 9, till 10, till 11 PM, considering taking family for granted। हाँ, वो तो सब है ही, घर में जाके लॉक करते तो कोई ना कोई तो खोलता ही है। Taken for granted family। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सर्वे हुआ, 110 कंट्रीज में हुआ, 8 साल तक चला। On all 5 continents, 1 lakh families were surveyed across caste, creed, color, religion, nationality। One question survey: what according to you is the greatest joy upon this earth?
67% plus respondents, they said, now listen very carefully, again I'll quote it letter to letter. They said that spending quality and quantity time with your near and dear ones, whom you love and respect, who love you and respect you, is the greatest joy upon this earth. पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद ये है, and you take it for granted. अभी आपकी फ्रेटर्निटी में से मैं बात करूं, ब्रॉनी बैथ ने पुस्तक लिखा है 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, वो भी आप पढ़ना, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए जरूर पढ़ना है. वो क्रिटिकली इल पेशेंट्स की नर्स थी ऑस्ट्रेलिया में, ब्रॉनी बैथ, और जब पेशेंट्स को भी पता होता है कि आफ्टर मे बी 25-35 डेज आई विल डाई, पैरामेडिकल स्टाफ को भी पता होता है, रिलेटिव्स को भी पता होता है, पेशेंट को भी पता होता है, तो ये नर्स प्राइवेटली जब रूम में कोई नहीं होता था, पेशेंट और वो दोनों अकेले होते थे, तब उनको बोलती थी कि ये फॉर्म आप भरो. फॉर्म क्या था कि नाउ व्हेन यू आर टुवर्ड्स द लास्ट डेज ऑफ योर लाइफ, व्हाट डू यू चेरिश एंड व्हाट डू यू रिग्रेट. चेरिश में थोड़ी बातें तो लिखी थी, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने रिग्रेट वाली कॉलम भर दी थी. ऐसे 1000 फॉर्म्स इकट्ठा किया, एंड रिस्पोंडेंट्स वेयर अ होल रेंज फ्रॉम अ कारपेंटर टू अ सीईओ, from an ordinary professional to a high-end executive, from a small family business owner to a giant MNC board member. सभी ने ये फॉर्म भरा था. She started a blog which became very famous. So she was advised to write a book. She wrote this book and she became a multi-millionaire on this book. Title of the book is The 5 Regrets of the Dying. जो मर रहे थे उनके जीवन के 5 अफसोस. ये सभी अफसोस जो रिग्रेट्स लिखे थे, उनमें से 5 कॉमन निकाले थे उन्होंने. उसमें पहला रिग्रेट क्या था? Why on earth did I work so much? Why on earth? अब मैं हेल और ब्लडी दोनों शब्द तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन बाबा तो वही है, पुस्तक पढ़ेंगे तो. Why on earth did I work so much? दूसरा रिग्रेट था, I should have spent more time with my family members than at work, which I could not. I regret. I must say sorry for my wife, to my wife and children. ये दूसरा रिग्रेट था. तीसरा रिग्रेट था, I should have lived a life of my choice and not the life others expected of me. फोर्थ और फिफ्थ रिग्रेट आपके लिए होमवर्क है. जरा गूगल सर्च कर लेना, Amazon पे ये पुस्तक मंगवा लेना. तो ये रिग्रेट आपको न हो, इसलिए ये वर्क लाइफ बैलेंस है. प्रमुख स्वामी महाराज कई बार ये कहते थे, आपके परिवार के साथ आप समय बिताएं, उनको संस्कारित करें, उनको भगवान के प्रति श्रद्धा करवाएं. 3 सर की ये बात करते थे. If Warren Buffett, being the richest man upon this earth with $100 billion of investment, can come back to his family by 6 p.m., at least can you come back by 8:30 p.m.? If no, then you are a very poor manager of time and work. महीने में 5-7 दिन आप 10 बजे रात को घर आए, समझ सकते हैं इमरजेंसीज थी, अर्जेंसीज थी. और 5-7 दिन आपको रात को 9-9:30 बजे घर आए, समझ सकते थे ट्रैफिक था. बहुत अच्छा कारण है ये. लेकिन और 15-18 दिन वर्किंग डेज, इफ यू कैनॉट कम बैक टू योर फैमिली बाय 8 or 8:30 p.m., लेट मी टेल यू, यू आर अ वेरी पुअर मैनेजर ऑफ वर्क एंड टाइम. कुमार मंगलम बिरला, उनके धर्मपत्नी का इंटरव्यू लिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने. उनको पूछा, हाउ आर यू मैनेजिंग योर टाइम? इट्स अ ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट, फ्रॉम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर दे मैन्युफैक्चर एवरीथिंग. इट्स अ huge, very huge, 5 lakh crore conglomerate. The Aditya Birla Group, and he is the chairman, executive chairman. How are you managing your time? आप टाउन में रहते हैं, साउथ मुंबई में हुजू है, तो 5 इन्विटेशंस तो रोज के होंगे. ट्रैवल टाइम, ऑफिस टाइम, फैमिली, हाउ आर यू मैनेजिंग इट? कुमार मंगलम बिरला के धर्मपत्नी ने माइक्रोफोन खींच लिया. आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन. और उनके धर्मपत्नी ने कहा, नाउ लिसन केयरफुली. ये प्रश्न के उत्तर में उनके धर्मपत्नी ने कहा कि बिरला हाउस में ये कस्टम है, इट्स अ कस्टम इन द बिरला हाउस दैट एवरीबडी हैज टू डिपॉजिट देयर मोबाइल विद द मदर एट 8 p.m. ऑन द डाइनिंग टेबल.
तालियां मत बजाना, कुछ कर पाओगे तो ही, कुछ करना चाहते हो तो ही बजाना। कल से वही सिस्टम और वही रफ्तार अगर चलनी हो तो तालियां मत बजाना, हम उससे खुश नहीं होंगे। हम तो दिन में 3 बार ऐसी तालियां सुनते हैं। बिरला हाउस में ये कर सकते हैं, वॉरेन बफेट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। वर्क लाइफ बैलेंस इसको कहते हैं। और अगर नहीं कर सकते हो तो मैं समझ सकता हूं कि आप वॉरेन बफेट और कुमार मंगलम बिरला से बड़े हैं, ये भी मानने दो, तो फिर दूसरी बात भी मानने दो। तो इतने बड़े फैमिलीज में ये सोच है। The Times of India interviewer was surprised. Ma'am, if you deposit your mobile at 8 p.m. on the dining table to your mother, what do you do after that? As if life does not exist without a mobile after 8 p.m. Actually, वो लाइफ तो उसके बाद चालू होती है। She said, from 8 to 8:45 p.m. it is family dinner time. 8:45 to 9:30 it is family sitting, talking, enjoying time. 9:30 को कुमार मंगलम बिरला की मदर, मतलब आदित्य बिरला की विडो वाइफ, she gives back the mobile to everybody in the family. 10 मिनट के लिए इमरजेंसीज चेक कर लेना, बाद में कोई काम हो तो मैसेज रख देते, tomorrow 10 AM I'm in the office, we talk then, finish. कितना बैलेंस है वर्क लाइफ। 50 इयर्स वॉरेन बफेट को पूरा हुआ, शादी के पार्टी रखी थी, 63 CEOs है बर्कशायर हैथवे के, 50 पार्टीज रखी थी, सरप्राइज पार्टीज, और कंक्लूडिंग पार्टी लंदन में थी, अटेंडेड बाय 30 हेड्स ऑफ स्टेट्स। समझ लो ऑडियंस में 30 प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर बैठे हो, वो ऑडियंस किस प्रकार का होगा, कितना डिग्निफाइड गैदरिंग होगा। वॉरेन बफेट के धर्मपत्नी बैठे थे, सब एक एक करके आगे आते थे, उनके साथ, ये कपल के साथ, या वॉरेन बफेट या उनकी पत्नी के साथ कुछ फाउंडेशन में काम किया, कुछ ऐसे स्मृति के प्रसंग अच्छे शेयर करते थे। 2 घंटे चले गए सबके आनंद में, एक एक आके स्टेज पे अपना अपना प्रसंग एक मिनट में कहते थे इन कपल के साथ, कुछ पुरानी स्मृतियां ये वो। फिर कोई इंटेलिजेंट बैठा था, अहमदाबादी होगा। सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। वॉरेन बफेट ने कहा, सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पी मैरिड लाइफ ऑफ 50 इयर्स? सी मैरिड लाइफ के आगे एक एडजेक्टिव था, हैप्पी, बाकी तो चलता भी है 50 साल, इनटू ब्रैकेट चलाना पड़ता है, इनटू ब्रैकेट चल जाता है। हैप्पी मैरिड लाइफ ऑफ 50 इयर्स। वॉरेन बफेट्स वाइफ, शी पुल्ड ओवर द माइक्रोफोन that was in front of her husband's face and said, I would like to answer this question. ये खींचा तो भी वॉरेन बफेट के चेहरे पे एक लकीर भी नहीं फरी, तो 50% of the answer people got from this, how they would have continued for 50 years, went along for 50 years. और फिर उन्होंने कहा कि there has not been a single day in our 50 years of married life that me, my husband Warren Buffett, and our children, thereafter our grandchildren, and today our great grandchildren, we don't sit for dinner together at 8 p.m. बड़े बड़े फैमिलीज में हमारे गुरुवरी महंत स्वामी महाराज जब 2 साल पहले अमेरिका पधारे थे, 2017 में, 3 साल पहले, तब वॉशिंगटन डीसी में थे। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बैरक ओबामा ने उनको इनवाइट किया था अपनी ऑफिस में, अभी वॉशिंगटन में ऑफिस में से, वहां वे एडवोकेसी करते हैं, ही इज एन एडवोकेट लॉयर, अपनी ऑफिस पे बुलाया, बैठे थे। तब बैरक ओबामा ने हमारे गुरुहरि को कहा, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, कि मैं 8 साल अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा, ही टुक 2 टर्म्स, 8 साल अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा, but there has not been a single day in my 8 years of presidency that me, my wife and my 2 daughters, we have not sat for dinner together at 7 p.m. अमेरिका का प्रेसिडेंट, 8 साल की प्रेसिडेंसी, उसमें एक दिन भी नहीं जहां शाम को 7 बजे वे लोग फैमिली डिनर पे ना बैठे हो। नाउ चेक योरसेल्फ, आई हैव टोल्ड यू इनफ अबाउट दिस। फैमिली डिनर्स के बारे में बहुत बात हो गई। ये कक्षा के लोग ये सोचते हैं। वॉरेन बफेट की पत्नी ने कहा, हाफ एन आवर वी ट्यूशन अवर चिल्ड्रन, thereafter we tuition our grandchildren. Today me and my husband at the age of 73 we tuition our great grandchildren. और आप अपने बच्चों को ट्यूशन सर के पास भेजते हो या ट्यूशन सर घर पे आते हैं, बिकॉज यू आर मोर बिजियर देन वॉरेन बफेट। इंटरव्यू ने पूछा क्यों, तब उनके धर्मपत्नी ने कहा, वी स्पेंड क्वालिटी टाइम विद आवर चिल्ड्रन, देन आवर ग्रैंडचिल्ड्रन, देन आवर ग्रेट ग्रैंडचिल्ड्रन,
so that we can transmit our family culture and the family values to our next generation. This is to be done. अभी ये श्रवण की बात आई, प्रोजेक्ट लॉन्च किया डॉक्टर सुशील ने, मतलब समझाया। आप में से कितने बैठे हो जिन्होंने अपने बच्चे जब छोटे थे तब श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता, ध्रुव की बातें की हो, या कितने यंगस्टर्स बैठे जिन्होंने अपने माता पिता के पास से ये बातें सुनी हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स फेथफुली। चलो कहीं लोग अच्छे लोग हैं, ठीक है, हाफ 50% ऑफ यू रेज योर हैंड्स, आई मस्ट गिव यू अ बिग हैंड फ्रॉम माय साइड। लेकिन बाकी के जो बैठे उन्होंने क्या किया? विराट कोहली कौन है, रोहित शर्मा कौन है, डोनाल्ड ट्रंप कौन है, वही समझाया। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। If you tell the stories of Virat Kohli to your young child, it is inspiration. And if you tell your children the stories of Shravan, Prahlad, Nachiketa and Dhruv, it is sanskar. You need both. Put a right combination. अपने माता पिता के पैर धोते थे, ये सीन हमने अभी वीडियो में देखे जब डॉक्टर सुशील कुछ समझा रहे थे। आपने अगर अपने बच्चों में श्रवण का कैरेक्टर बचपन से अगर फिट किया है, तो बड़ा होकर उसमें ये संस्कार रहेगा कि माता पिता को बुखार आया, माता जी बीमार है, बुखार है, तो चलो मैं पैर उसके दबाओ, वरना तो गला तो यही कर देते हैं। 3-4 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी व्हाट्सएप पे, आप सभी ने देखी होगी। मुंबई के बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति, 20,000 करोड़ का एम्पायर, शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स का, अपने बच्चे को दे दी, लड़के को दे दिया। हाँ, समय आता है देना पड़ता है, ठीक है, वो तो जो भी कुछ प्रसंग बने घर में हमें पता नहीं है, लेकिन द फादर वॉज ड्रिवन आउट एंड ही वॉज पुट इनटू अ रेंटेड 2 BHK फ्लैट ऑन नेपेन सी रोड। एक शेफ दे दिया, एक ड्राइवर दे दिया, एंड रोते रोते उन्होंने अपनी वीडियो वायरल की थी, आप सभी ने देखी होगी। तो यही हुआ ना, गला दबा दिया। प्रमुख स्वामी महाराज ये बात करते थे कि अभी अगर आपने अपने बच्चों को संस्कारित नहीं किया तो एक दिन संपत्ति और संतति दोनों आप गवा देंगे। तो आपके बच्चों को जनरल नॉलेज भी दो, ये बातें भी करो संस्कार की। हमारे दिल्ली अक्षरधाम का हमें अनुभव है, 2005 में इनॉग्रेट हुआ, 2020 है। पिछले 15 सालों में हमारी एवरेज आई 17,000 फुटफॉल्स पर डे। Thousands of people have changed their lives for the better visiting Akshardham. Thousands of lives changed. Thousands of divorces saved visiting Akshardham. वे वही लोग पत्र लेके हमको भेजते हैं या विजिटर्स बुक में लिखते हैं, तभी हमको पता चलता है। Thousands of divorces saved. Thousands of children left aside their habits of video games, ये वो गेमिंग वैपिंग जो भी है, वो छोड़ के वो लोग सही तरीके पे, सही राह पे आए। Thousands of families dispute सॉल्व हो गए वहां प्रदर्शनी देख के, वहां कुछ उपदेश पाके। इतना पावरफुल मैसेज है दिल्ली अक्षरधाम में। तो ये सभी बातें नेक्स्ट जनरेशन को करनी है। सिर्फ हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, फॉलीवुड जितने वुड्स पृथ्वी पे हैं, सिर्फ उनकी बात, विचार और प्रदर्शन वो नहीं करना है। यू मस्ट ऑलवेज कंसीव एन आइडिया that my son should be the best professional and a great human being. दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, हाँ या ना? A smart professional, an extraordinary professional and a very great human being. ये कॉम्बिनेशन बचपन से चलाना है। That is work life balance from the life point of view. तो ये करना बहुत जरूरी है। तो अंतिम 5 मिनट में ये पूरा करता हूं मैं। प्रमुख स्वामी महाराज यहां अहमदाबाद में थे। एक लड़का आया, ही वॉज अपियरिंग फॉर हिज यूपीएससी, IAS बनना था, कलेक्टर बनना था। प्रमुख स्वामी महाराज के पास आया, व्यक्तिगत दर्शन में प्रमुख स्वामी महाराज सभी को मिलते थे। प्रमुख स्वामी महाराज ट्रैवल टू 18,000 villages in 60 countries of the world. He read and answered 7.5 lakh letters in his lifetime at an unbelievable average of reading and answering more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. He personally met and counseled more than 2 million people. He personally visited, sanctified more than 3.5 lakh homes, offices, factories and shops. Unbelievable hard work. In future, for social work, not sky, but Pramukh Swami Maharaj is the limit. क्या काम किया है पृथ्वी पे? उनको पूछा, ये IAS होने वाला युवक ने,
कि स्वामी जी जीवन का अंत मृत्यु निश्चित है, तो फिर जीवन जीने का अर्थ क्या है? प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने विशाल अनुभव से, अपने विजडम में से और हमारी शास्त्रों परंपरा में जो उत्तर दिया है उसके कॉम्बिनेशन से ब्यूटीफुली और वेरी सिंपल वर्ड्स में बताया। 5 बातें बताई। फर्स्ट, अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां बराबर निभाना, फर्स्ट। सेकंड, नैतिकता और प्रामाणिकता रखते हुए काम करना, सत्शास्त्रों के अनुसार पवित्र जीवन जीना, व्यसन मुक्त जीवन जीना। तीसरा, अन्य को मदद रूप होना, निस्वार्थ सेवा करना। चौथा, भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा और भक्ति रखना। और 5वां, हमारे आत्मा का कल्याण करना। ये 5 बातें जीवन जीने का अर्थ है। इट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो आप जितनी प्रवृत्तियां दिन भर करते हो, ये 5 में ठीक तरह से बैठती है, तो यू आर लिविंग अ वंडरफुल लाइफ। ये 5 को सिंप्लीफाई करते हुए हम कई बार प्रोफेशनल्स को कहता हूं, व्हेन आई टॉक इन माय सेमिनार्स, आई टेल देम कि 3 ही बात जीवन में करनी है, प्रोफेशन, फैमिली एंड स्पिरिचुअलिटी। इन 3 के बाहर जो आप गए तो तकलीफ ही है, यू विल इन्वाइट सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। द balloon does not go up in the air because of the color, it goes up because of what is inside it. You will not progress and go up because of what is outside you, your talents, your intelligence, nothing counts. How are you from your inner self? That counts. That matters the most. सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उनका देहांत हुआ एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इन द यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 750 रुपए थे, इसलिए 2200 करोड़ की मूर्ति बनी, वरना ये नहीं बनती। उस 750 के पीछे और 5-6 अगर जीरो होते, जो मॉडर्न टाइम्स में हम देखते हैं, अगर होते तो ये 2200 करोड़ की स्टैच्यू नहीं बनती। Live an ethical life, a pure life and a simple life. Then you will enjoy your life. Keep your attitudes and thought processes right. एक अच्छा प्रसंग कहना चाहूंगा। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार न्यूयॉर्क में थे, बैठे थे, रूम छोटी थी, किसी ने कहा कि ये रूम बहुत छोटी है। प्रमुख स्वामी महाराज ने इमीडिएटली कहा, छोटी रूम अच्छी, पावर कम यूज होता है। एक हफ्ते के बाद वे टोरंटो में थे, स्पेशियस रूम थी, वहां बैठे थे, लोगों को मिल रहे थे। किसी ने कहा कि स्वामी जी ये रूम बड़ा है, ये अच्छा है। प्रमुख स्वामी महाराज ने इमीडिएटली कहा, यहां बड़ा रूम अच्छा, ज्यादा लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। छोटा रूम भी अच्छा, बड़ा रूम भी अच्छा। एवरीथिंग इज योर माइंडसेट। Don't give any power to situations, circumstances and people around you. Don't give your remote control in people's hands that they can disturb you anytime. Don't give your remote controls to situations and circumstances that can disturb you anytime. अपना रिमोट कंट्रोल तो अपने हाथ में होना चाहिए। यार इसने मेरा मूड बगाड़ दिया, तू कमजोर है, you are weak. If you are strong, nobody can change your moods. You go according to your moods. You go according to your thought processes. इतना तो strong mind develop करना ही पड़ेगा। He didn't call me since 2 days. क्या होते हो? इतना सोच लो नहीं कॉल किया, काम में होगा, भूल गया होगा, व्यक्ति है, तेरा फ्रेंड है ना, तू कॉल कर ले। नहीं, he should call. Very weak. Attitudes हमारे क्लियर होने चाहिए। Attitudes, अगर एटीट्यूड्स क्लियर है ना, तो यू विल एंजॉय योर लाइफ। थॉट प्रोसेस से, एट द एंड ऑफ द डे मैन इज अ बंडल ऑफ हिज ओन थॉट्स। परिस्थिति तो कोई भी हो, बारिश है, आप एक अम्ब्रेला ले लो, रेनकोट पहन लो, तो आप वेट नहीं होंगे, बारिश बंद नहीं कर पाओगे। सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस, नेगेटिविटी आपके आजू बाजू में है, वो आप रोक नहीं पाओगे। वेयर अ प्रॉपर डिफेंस सिस्टम, एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग रखना कि मैं जितना चाहूं उतने ही विचार और व्यक्ति मेरे मन में आ सकते हैं, मैं न चाहूं तो ये व्यक्ति और ये परिस्थिति कैन नॉट इफेक्ट मी। डिफेंस वॉल स्ट्रॉन्ग रखना, देन यू विल एंजॉय योर वर्क इन लाइफ। इट इज अ प्रॉपर बैलेंस। एक बेबी मॉस्किटो था, फर्स्ट मेडन फ्लाइट पे गया, द मदर मॉस्किटो एंड द फादर मॉस्किटो वर जस्ट लुकिंग एट देयर बेबी, द फर्स्ट फ्लाइट and it went around the whole room and came back to his parents.
और मॉम बहुत उत्साहित थी। मॉम ने कहा, बेटे बेटे कैसी फ्लाइट रही, फर्स्ट फ्लाइट, हाउ वाज योर फर्स्ट फ्लाइट? बेबी मॉस्किटो ने कहा, मॉम, wherever I went, everybody was clapping for me. पता चला एक्चुअली what was happening, everybody were trying to kill him. एटीट्यूड क्या रखा? हाँ, तालियां बजती है अपने लिए। With the right kind of attitude, you can turn around any situation in your favor. It depends upon your thought process. Then you will enjoy your work and life. So all my prayers for all of you. Thank you for patiently hearing me. And again, I beg your pardon for being late because of this situation. But my enormous prayers for you and your family for a wonderful love, work and life balance. Thank you very much.